নমস্কাৰ। পূৰ্বোত্তৰ প্ৰদেশীয় মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চে আজি জ্যোতি উৎসৱ নামেৰে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে আৰু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীৱী, সাহিত্যিক, পৰম শ্ৰদ্ধেয় ডক্টৰ নগেন শইকীয়া ছাৰ, আজি সভাত উপস্থিত থকা দুলিয়াজান সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক তেৰছ গোৱালা ডাঙৰীয়া, আসাম টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, APLৰ মাননীয় অধ্যক্ষ বিকুল ডেকা ডাঙৰীয়া, প্ৰভিন্সিয়েল প্ৰেচিডেণ্ট হিমশিখৰ খান্ড্ৰেলিয়া ডাঙৰীয়া, প্ৰভিন্সিয়েল ছেক্ৰেটাৰী ৰাজ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ কপিল লাখোটিয়া ডাঙৰীয়া, নেশ্যনেল ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ৰাজীৱ চন্দক ডাঙৰীয়া, ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ উপাধ্যক্ষ উজ্জ্বল ফুকন ডাঙৰীয়া, আৰু কোনোবা আছে আৰু আজি এই সভাত বিশেষভাৱে উপস্থিত থকা সতীসাধিনী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত পৰম শ্ৰদ্ধাৰ মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মকৰ্তাসকল আৰু উপস্থিত শুভাকাংক্ষী ৰাইজ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে মই পূৰ্বোত্তৰ প্ৰদেশীয় মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তাক বিশেষভাৱে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে আজি এগৰাকী মহান মনীষীৰ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ নামেৰে এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছে। তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰম্ভণিতে দিয়াৰ যিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ বাবে আপোনালোক নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ জীৱনজোৰা যি সাধনা আজি আমাৰ সন্মুখত পৰম শ্ৰদ্ধাৰ অধ্যাপক, আমাৰ সকলোৱে অসমৰে এগৰাকী সাহিত্য জগতৰ উজ্জ্বল তাৰকা নগেন শইকীয়া ছাৰী বোধহয় এই ক্ষেত্ৰত অধিক সবলভাৱে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ জীৱনজোৰা সাধনাৰ সন্দৰ্ভত বক্তব্য ৰাখিব পাৰিব। আৰু লগতে অধ্যাপক জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়া ডাঙৰীয়াও আছে। নিশ্চিতভাৱে তেখেতসকলে এই বিষয়ত বহু কিছু গৱেষণাও কৰিছে। গতিকে মই এটাই কথা কওঁ, যিগৰাকী মহান মনীষীয়ে আমাক অত্যন্ত শ্ৰদ্ধা সহকাৰে নিষ্ঠাৰে
মাতৃভূমিৰ হকে কাম কৰাৰ নিমিত্তে অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল আৰু তেখেতে অসমৰ বোলছবি উদ্যোগ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি আগভাগ লৈছিল জয়মতী ছবি নিৰ্মাণ কৰিছিল সেইগৰাকী মহান মনীষী ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ কৰ্মৰাজি অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ লোকে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে আৰু তেখেতৰ আটাইতকৈ মোৰ ভাল লগা এটা দিশ আছে তেখেতৰ বহু ভাল লগা দিশ আছে তাৰ ভিতৰত মোৰ ভাল লাগে তেখেতে প্ৰকৃতি প্ৰেমী হিচাপে গছে গছে পাতি দিলে ফুলৰে হৰাই কি ৰামৰাম মোৰ খুব ভাল লাগে কাৰণ আমি সকলোৱে প্ৰকৃতিৰ প্ৰেমী হিচাপে আমি জীয়াই থকাৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব প্ৰকৃতিক ভাল পালেহে প্ৰাণী সুৰক্ষিত হ'ব গতিকে প্ৰাণীৰ বাবে প্ৰকৃতি ৰচনা কৰা হৈছে সেইবাবে মই ভাবো যে আমি উঠি অহা প্ৰজন্মই এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব যাতে আগন্তুক দিনত উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ ঈশ্বৰে আমাক যি উপহাৰ দিছে এই পৃথিৱীখন সেউজীয়া বাতাবৰণ নদ নদী খাল বিল জান জুৰি সাগৰ মহাসাগৰ পাহাৰ ভৈয়াম এই সকলোবিলাক আমাৰ বাবে সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিটো প্ৰাণী যাতে সুকলমে জীয়াই থাকিব পাৰে নিশ্চিন্ত মনে জীয়াই থাকিব পাৰে সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হ'ব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰকৃতিৰ যিটো ৰূপ সুন্দৰভাৱে ৰচনা কৰিছে ফলত আজি প্ৰাণী জগত এইখন পৃথিৱীত যুগে যুগে সুকলমে জীয়াই থকাৰ এটি সুন্দৰ বাতাবৰণ আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যাই কি নহওক मैं आज इस अवसर पे आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आज पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी युवा मंच ने जो भी कदम शुरुआत से ही मानव कल्याण के लिए उठाते आए हैं इसके लिए निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं मैं अपनी एक अनुभव व्यक्त करना चाहता हूं जिस कालखंड में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी सौंपा था उसी कालखंड में असम में जैसे आप सबको मालूम है असम में हर साल बारिश भी होता है बाढ़ भी होता है भू कटाव भी होता है इस समस्या का साथ हमेशा हमें संघर्ष करना पड़ता है हर मनुष्य को किसान हो या बिजनेसमैन हो विद्यार्थी हो या शिक्षक हो सभी वर्गों को इस समस्या से अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है तो उसी कालखंड में 2012 मुझे अभी भी याद है चारों तरफ भयंकर बाढ़ हुआ था तो मैंने उसी कालखंड में आप लोगों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी जी से मैंने विशेष आग्रह की गांधी जी हो सके तो मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से आप कुछ मदद कीजिए तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू की और प्रदेश टीम को उन्होंने अपनी तरफ से ये सुझाव दी कि आप असम की अलग अलग रिलीफ कैंप में जाइए लोगों का साथ बातचीत कीजिए और लोगों का दिक्कत के हिसाब से उनको राहत देने का काम कीजिए तो उसी कालखंड में जो आप लोगों ने सेवा की है मैं करीब से आप लोगों को आविष्कार किया आपके दिल में बसा हुआ इंसानियत का भावना शक्तियों को मैंने देखा इसके लिए मुझे लगता है कि आज आप लोगों का एक्सेप्टेबिलिटी क्रेडिबिलिटी देश के अंदर बढ़ चुका है हम सबको यही मानना है अगर आप निष्ठा से काम करेंगे तो आप आस्था की पात्र हो सकते हैं कोई भी व्यक्ति जीवन में अगर समाज की बड़े आस्थावान व्यक्ति बनना चाहते हैं आस्थापूर्वक वो अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको निष्ठा से काम करना ही होगा आज जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 साल के अंदर उन्होंने जो ईमानदारी से निष्ठा से मेहनत की अपने बुद्धि अपने ज्ञान अपने बल सभी शक्ति को मानव कल्याण के लिए देश की
हितों के लिए उन्होंने समर्पित भावनाओं से सेवा की है। इसके वजह से आज देश जाग उठा है। देश के हर नागरिक को ऐसा लगने लगे हैं हम कर सकते हैं, हमारा पास वो काबिलियत है और हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। मोदी जी का यशस्वी जो उनके नेतृत्व ने आज सारे दुनिया में हिंदुस्तान को ऐसा एक जगह दी और आज हिंदुस्तान की जो भी इन्फ्लुएंस ग्लोबल सोसाइटी में जिस हिसाब से बढ़ने लगे, आप लोगों ने खुद देखा है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के मैदान से कैसे सही सुरक्षित हमारे 27,000 से अधिक भारतीय हमारे विद्यार्थियों को उन्होंने सही सुरक्षित अपने देश में वापस लाया। यही है हिंदुस्तान का शक्ति जो पहले थे नहीं। हमने सदियों से स्वतंत्रता का पिछली 75 साल के अंदर ऐसा दृश्य कभी भी भारतीय ने देखे नहीं थे। ये पहली बार के लिए हुआ है, वो संभव हुई है सिर्फ मोदी जी के लिए, मोदी जी के सफल नेतृत्व के लिए, मजबूत नेतृत्व के लिए। तो इसलिए मैं मानता हूं कि कैसे ईमानदारी से काम करने से लोगों का दिल जीत सकते हैं। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि आप ऐसे ही बने रहिए और आप लोगों ने सारे पूर्वोत्तर को जोड़ने का काम करने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। हमारे सिक्किम हो या त्रिपुरा हो, मिजोरम हो या मणिपुर हो, नागालैंड हो या मेघालय हो, अरुणाचल प्रदेश हो या असम हो, सारे नॉर्थ ईस्ट को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये देश के कोई मामूली इलाका नहीं है, ये देश के अष्टलक्ष्मी है। इस अष्टलक्ष्मी को सही दिशा पर हमें खड़ा करनी होंगे और इसलिए अगर ये अष्टलक्ष्मी जाग उठा तो हिंदुस्तान जाग उठेगा। इसलिए आप लोगों ने सारे पूर्वोत्तर को जोड़ने का अपने संगठन की द्वारा, कार्यक्रम की द्वारा, मानव सेवा की द्वारा आपने जो भी परिकल्पना प्रस्तुत की है, मेरा मानना है आप निश्चित रूप से सफल होंगे। क्या आप लोगों का ऐसा उम्मीद नहीं है क्या सफल होने का? देखिए, मुझे आज परम आदरणीय हमारे सबसे प्रिय और श्रद्धेय सैकिया सर है, तो मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। मैं तो अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं क्योंकि मुझे लखीमपुर भी जाना है। बिहपुरिया असम साहित्य सभा के एक कार्यक्रम है, तो मैं अपने दिल में जो सद्भावना आपके लिए है, शुभकामना है, इसको व्यक्त करने के लिए इस मंच पर आ गए। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे आयुष मंत्रालय को संभालने के लिए दायित्व सौंपी है, तो इसलिए मैं कहूंगा आयुष मंत्री होने के नाते मेरा काम ही ये है। अगर आयुष के बारे में नहीं बोलूंगा तो हमारी बात अधूरा रह जाएगा। सब मानव शरीर के लिए ये जो विभाग है बहुत महत्वपूर्ण है। 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या कालखंड में जो प्रकृति में बसा हुआ शक्ति को आविष्कार किया था, उसी शक्ति की आधारित ये मंत्रालय बनी है। यानी कि ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, परंपरागत जो हमारा चिकित्सा पद्धति है, प्राचीन विज्ञान पद्धति है, इन चीजों को हमें सही उपलब्धि करना होगा, इससे हमें सही जानकारी लेना होगा। तो इसलिए अध्ययन और अनुसंधान के जरिए प्रकृति में बसा हुआ, चाहे पेड़ में हो, चाहे पौधा में हो, चाहे फल में हो, चाहे पात्र में हो, कहीं में भी हो, चाहे मिट्टी में हो, जो भी प्रकृति ने हमें शक्ति दे के रखा है, इस शक्ति को हमें सही पहचानने के लिए हमें उसको अध्ययन करना होगा और अनुसंधान भी करना होगा वैज्ञानिक पद्धति से, ताकि हम इसकी एविडेंस डेवलप कर पाए और एविडेंस के आधारित हम अपने दवाई भी बना सके और फूड सप्लीमेंट भी बना सके।
ताकि मानव शरीर में काम में आए। इसलिए हम पहला शुरू करना चाहते हैं आयुर्वेदा। हमारे आयुष फैमिली में 7 सदस्य है। आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोहारिकपा, योगा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी, ये आयुष फैमिली है। सभी परंपरागत पद्धति से ये हमेशा मानव कल्याण के लिए सदियों से काम करते आए हैं। तो मेरा कहना यही है कि हमारे आयुर्वेदा में यही कहा गया है, आप जो भी खाते हैं, आपकी जो भोजन करते हैं, ये भोजन ही आपके दवाई है। योर फूड योर मेडिसिन, योर फूड इज योर मेडिसिन। चाहे सिद्धा हो, आयुर्वेदा हो, सब लोगों ने यही कहा है। इसलिए हमें ये बात सही जानना होगा कि हम जो भी खाते हैं अपने शरीर के लिए खाते हैं। अपने शरीर का हर अंग हमेशा निरोगी रहे, सक्रिय रहे, सजीव रहे, तंदुरुस्त रहे, मजबूत रहे, इसके लिए हम भोजन लेते हैं। तो इसलिए भोजन लेने के समय आपको भी विशेष रूप से लालच को ना प्रमुखता देते हुए आपको भोजन लेना होगा। और योगा, योगा तो ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन योग के जरिए निरूप, जो व्यक्ति सुबह हमेशा योग अभ्यास करते हैं, जो भी व्यक्ति, वो हमेशा निरोगी रहता है। ये विज्ञान है, ये कोई स्टोरी टेलर्स, कोई ऐसा सुमंत्र वाला चीज नहीं है। ये विज्ञान है। ये विज्ञान शरीर का है, मन का है, आत्माओं का है। ये विज्ञान जीवन का है। दिस इज साइंस ऑफ बॉडी, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ सोल एंड साइंस ऑफ लाइफ। इसलिए इस विज्ञान को आप सही समझिए और उपयोग कीजिए। प्रभु ने आप लोगों के लिए सब व्यवस्था दे रखी है। ऐसा नहीं कि आपका जो ज्ञान, भक्ति, वैरागी, बुद्धि, प्रभु ने इसका साक्षात प्रकृति में जो सजावट है, इस सजावट में सब शक्ति बसा हुआ है। सारे पद्धतियों ने मानव शरीर को कैसे तंदुरुस्त रखे, सुस्वास्थ्य रखे और मानव जीवन कैसे खुशियों से भर जाए, आनंदित रहे, इसके लिए ये व्यवस्था करके गया है। ये कोई व्यवस्था एक ही शादी का नहीं है, हजारों साल पुरानी है। जैसे आप देखिए, जब रामायण के कालखंड में लक्ष्मण जी घायल हो गए, राम चिंतित थे, क्या होगा मेरा भाई का हालत। उसी कालखंड में जोशी आए, वैद्य आए, कहा आप जाइए हिमालय से, आप ऐसा एक संजीवनी बूटी है, उसको ढूंढ के लाइए, उसका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, फिर से वापस आएगा। तो प्रभु राम की जो भक्त हनुमान जी ने स्वयं गया और पहाड़ को उठा के लाया और संजीवनी बत्ती को सही उपयोग किया। इसके वजह से फिर से राम को और लक्ष्मण जी को जीवन वापस मिल गए। तो इस संजीवनी बत्ती ये प्रभु का रचना हुआ, प्रकृति में बसा हुआ शक्ति है, जहां औषधि गुण है। तो मैं इस बातों को इसलिए रखा हूं क्योंकि आप पूर्वोत्तर में जब भी कैंपेन के लिए, अपने काम के लिए जाते हैं, आप निश्चित रूप से इन बातों को नई पीढ़ियों का बीच में सेंसिटाइज कीजिए। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये बहुत जरूरी है। दाएं बाएं आपके घर जहां है, दाएं बाएं प्रकृति में जो भी शक्ति है, आप कभी भी देखने के लिए कोशिश नहीं करते। आपकी बुद्धि को आप उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? इसको इस्तेमाल कीजिए, सही इस्तेमाल कीजिए। प्रभु ने ऐसे नहीं दिया है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप हर दिन, हर घर आयुर्वेदा, ऐसा एक आप जीवन पद्धति में इसको भी शामिल कीजिए। हर दिन, हर घर आयुर्वेदा बोल सकते हैं आप? हर दिन, हर घर आयुर्वेदा, तब जीने का मजा लीजिए। देखिए, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, बहुत दयालु है प्रभु। प्रभु ने अर्जुन को क्या बोला था?
हे अर्जुन, प्रकृतियों का नियम कभी भी उल्लंघन मत किया करो। अगर प्रकृतियों का नियम उल्लंघन किया तो मैं नाराज हो जाऊंगा। प्रकृति मेरा ही रूप है, मेरा ही रचना है। अभी देखिए G20 का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी का एक साल के लिए जो दायित्वभार ली है, देश की 59 सिटी में 200 से अधिक अलग अलग कार्यक्रम होंगे। गुवाहाटी में भी 2 दिन पहले कार्यक्रम हो चुका है सस्टेनेबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की। सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप के पहला बैठक गुवाहाटी में हो चुका है। तो सारे ये जो G20 का जो थीम है, ये थीम क्या बताते हैं? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। यानी कि ये प्लेनेट अर्थ में एक ही प्लेनेट अर्थ है और एक ही परिवार है और हमारा सबका फ्यूचर एक ही है। तो इसलिए हम सबको इंटीग्रेटेड होना होगा, एक साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में काम करना होगा, ताकि हम सारे पृथ्वी में प्लेनेट अर्थ में धरती माता को हम सही सुरक्षित कर पाया। प्रकृति रहेगा तो प्राणी रहेगा, पानी रहेगा तो प्राण रहेगा। प्रकृति रहेगा तो प्राणी रहेगा, पानी रहेगा तो प्राण रहेगा। प्रकृति, प्राणी, पानी और प्राण, कितना बढ़िया रिश्ता बनाया है प्रभु ने, है ना? इसलिए मेरा यही कहना है, हम अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। परम आदरणीय मोदी जी ने कहा है, लक्ष्य है पेरिस एग्रीमेंट के मुताबिक दुनिया के मानव समाज सभी राष्ट्रों ने एक बात में सहमत हुई है कि बाय 2070 देयर विल बी नेट जीरो, यानी कि जीरो कार्बन इमिशन, ताकि हमारे ये प्रदूषण निकल जाए, हमारे पर्यावरण सही रहे और हमारे वातावरण शक्तिशाली रहे, ताकि हमारे पृथ्वी में बसे हुए हर प्राणी को राहत मिले, सही सुरक्षा मिले। इसके वजह से क्लाइमेट एक्शन के सिलसिले में आज G20 में चर्चा हो रहा है, कैसे हम क्लाइमेट एक्शन करें, ताकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम सीमित कैसे 1.5 डिग्री का निश्चित तक ले पाए, ताकि हमारे मौसम, हमारे माहौल, हमारे पर्यावरण, हमारे वातावरण सही रहे, हम सब सुरक्षित रहे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब जुड़ जाइए। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को मौका दिया है, पहली बार के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म सारे प्रदेश को मिला है, टू शोकेस देयर कल्चर, हेरिटेज, हॉस्पिटलिटी एंड ब्यूटी ऑफ दिस लैंड। असम को भी मौका दिया है, अरुणाचल प्रदेश को मौका दिया है, केरल को भी दिया है, गोवा को भी दिया है। सभी प्रांतों को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 200 से अधिक बैठक करने के लिए 59 सिटी में ये मौका दिया है। पहले क्या था, कांग्रेस के कार्यकाल में जितना भी बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट होते थे, बड़े बड़े शहर में सीमित रहते थे। अब उन्होंने क्या किया, सबका साथ सबका विकास, इसी नीति का आधारित सबको मौका दिया है और अपनी शक्ति दिखाने का। हिंदुस्तान में बायोडाइवर्सिटी का जो शक्ति है, कल्चर हो, स्पिरिचुअलिज्म हो, टूरिज्म हो, बायोडाइवर्सिटी हो, सभी सेक्टर में जो भी हमारा शक्ति है, इस शक्ति को आप शोकेस कीजिए, ताकि 20 देश से अधिक अलग अलग इंस्टीट्यूशन से और अलग अलग इन्वाइटेड नेशन से जो भी लोग आए हैं, सब हिंदुस्तान को आविष्कार करिए। आप देखिए, आपके लिए एक बड़े महत्वपूर्ण एक खबर है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जलमार्ग विकास के लिए 2014 से लगातार उन्होंने मेहनत की है। जलमार्ग विकास, हिंदुस्तान के अंदर 400 से अधिक नदी है, वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज,
और कोस्टल तो है ही सही। उन्होंने क्या कहा, नदी में जो शक्ति है, संभावना है, संपदा है, इसको हम जाने, हम आविष्कार करें और इसको सही उपयोग करके अपने जीवन को समृद्धिशाली बनाए। तो इसके लिए उन्होंने जो काम किया, इसके वजह से नेशनल वाटर वेज बढ़ चुका है। पहले 5 थे हिंदुस्तान में, आप 111 तक गए और अब गंगा को परिष्कार किया। क्लीन गंगा मिशन उन्होंने शुरू की और गंगा की दोनों पार में बसे हुए 2500 से अधिक हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सबको उन्होंने आह्वान किया, आप सब मां गंगा को पूजा करते हैं, प्रणाम देते हैं। मां गंगा की पवित्र पानी से, जल से हम अपने जो भी हमारे शरीर व मन को हम पवित्र बनाते हैं। तो उसी मां गंगा के पानी को आप पॉल्यूट मत कीजिए, प्रदूषित मत कीजिए, उसको परिष्कार कीजिए। सब लोगों को उन्होंने आह्वान किया और पिछली 9 साल के अंदर सब लोगों ने मान लिया और किसी ने भी गंदगी से भरा हुआ पानी को गंगा में नहीं फैलाया। इसके वजह से गंगा का पानी फिर से पीने का लायक हो गया और आज मां गंगा की गोद से, काशी विश्वनाथ धाम से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 13 जनवरी को वहां से उन्होंने फ्लैग ऑफ की और आज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश होके असम के डिब्रूगढ़ तक वो गंगा विलास चलने लगे। और आप लोगों के लिए खुशी का बात है, सारे टूरिस्ट कोई भी हिंदुस्तान का नहीं है, सारे के सारे स्विट्जरलैंड की है। तो इसलिए ऐसे ही हमारी शक्ति को उन्होंने सही पहचाना, उसको सही उपयोग करने के लिए उन्होंने जो भी कदम उठाए, इसकी वजह से आज देश हर सेक्टर में विकास के रास्ते पर तेज से चलने लगा है। तो मैं तो यही चाहूंगा, पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी युवा मंच, आप सब अगले दिनों में इन चीजों को आप आगे बढ़ाइए और जैसे ही मानव सेवा आप कर रहे हैं ऐसे करते जाइए। प्रभु आपको शक्ति, भक्ति, बल सब दे, इसी उम्मीद का साथ। और फिर से परम आदरणीय नगेनैकिया सार, मैं गभीर श्रद्धा और सेवा जनाइছো। लगते ज्योतिप्रसाद शइकिया डांगरिया, तेरस गोवाला डांगरिया, ऋतुपर्ण बरुवा डांगरिया, आमार बिकुल डेका डांगरिया, उज्जवल फुकन डांगरिया, जिमान मोर লগত সতীত্ব আছে সকলোৰে হয়। মই ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোকে কোটি কোটি প্ৰণাম জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছো। জয় অসম, जय हिंद। सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। सिर्फ 2 मिनट आपका लेना चाहेंगे। हमारे आपसे एक